Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. we come up with this quiz where actually I discuss the static GK and I give you a question and you have to answer it in the live chat. I hope you are aware of this. So this we come every Sunday at 8 p.m. with static GK, right? Which will be of course important for the upcoming exam, CLAT, AILET, SLAT and other exams. So if I am audible and visible, please write in the comment section, yes sir, you're audible, so that we can start our session. SLAT and other exams. Okay, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay, so if I am audible and visible, एक बार आप comment section में लिख दो, yes sir, you're audible, so that we can start our session. So let's start with the question answer, the first question of the day. But एक बार आप लिख दो comments में that everything is clear. Yes, good evening. Okay, fine. So let's start with the first question. Yes, good evening. Yes, good evening, Dharini, Aman. Good evening, guys. Good evening, Shreya. So let's start with the first question of the day. And the first question says, which of the following articles of the Indian Constitution talks about freedom of speech, conscience, freedom of profession, practice, and propagation of religion? Article 21, capital A, 25, 23, 24. Yes. Veer Sharma, Manaswini, Shreya, Nivi, Aman, Topo, you are right. The right answer is Article 25 talks about right to freedom of religion. Okay. Now, one more thing I want to ask is, can you please tell me what is Article 21, capital A? ये कौन सा article है? Yes, B बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Gauravi, Safi, Naumani, you are the right. Can you please tell me Article 21, capital A talks about what? Right to education. Right, Nivi, very good. Huh? Yes, Veer Sharma, you're also right. Actually, it talks about right to education, which actually first, Right to Education Act is also that. Before that, actually, with the help of 82nd Constitutional Amendment, it was inserted in 2002. Later on, RTE Act was separately passed and all. Okay. So these are the things you should be knowing about it. Yes, Manaswini, Gauravi, Safi, Dharni, Aman, you are the right. Okay, so we're talking about Article 25, talking about freedom of conscience, free profession, practice, and propagation of religion. So subject to public order, morality, and health. So these are the three, what we call it as reasonable restriction. जैसे हम लोग Article 19 में reasonable restriction कहते हैं ना. If you are watching my today's class, you must at 3 p.m. you must have seen I had discussed this as well. So Article 19 Clause 2 talks about reasonable restriction in freedom of speech. हमने आपको बताया था कि कोई भी right absolute नहीं होता है, ठीक है, उसमें limitations होता है. Similarly, Article 25 talks about freedom of conscience, free profession, practice of religion, subject to these three things: public order, morality, and health. ये नहीं आप फ्रीडम ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कोई इमोरल चीज पब्लिक में नहीं स्प्रेड कर सकते हैं, या ये हेल्थ के अगेंस्ट हो, या पब्लिक डिसऑर्डर नहीं कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन उससे किसी पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए. सो दीज आर एक्चुअली द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ऑल. ठीक है, खैर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट. ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, but yes, the reason why I am giving these questions because so that you should have a habit of reading English, and if you see the exam, they are actually asking the big passages. तो आपको आदत होना चाहिए बड़े बड़े passages पढ़ने के, है ना. एक्चुअली ऐसे में लिख देना चाहिए इसको, कोट में यहाँ पे लिख देना चाहिए था. ये एक्चुअली ये है, हेडिंग है, उसके बाद से स्टेटमेंट शुरू है, ऐसे लाइक दिस. The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. कहाँ मेंशन है? पहले बताओ, फिर उसके बाद मैं I will explain it. 47 is health. Yes. So Shreya Agarwal has answered me correctly. Then
Then Gorvi has answered it correctly. Kolapalli is also right. Aman is also right. So the right answer is 48. Talks about it. Take Article 48 talks about it. B is the right answer. Not 49, not 47, not 50. The right answer is B, 48. Now, अब देखो इसमें है क्या? You understand the concept of DPSP? Can anyone tell me? थोड़ा सा कोई बता सकता है? What is directive principle of a state policy? Because इसको डिटेल में तो पेड सेशन से पढ़ाया जाता है, बट स्टेट पॉलिसी एक रफ आइडिया कोई बता दीजिए. व्हाट इज डीपीएसपी? कैन एनीवन टेल मी? पॉलिसी सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट. यस अक्षित, यू आर राइट. यस धारिणी, यू आर राइट. और एक तरह का एडवाइस है ना? प्रिंसिपल्स विच गाइड पॉलिसी ओरिएंटेशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, डायरेक्शन फॉर गवर्नमेंट सिटीजन वेलफेयर. यस कृति, मतलब एक लाइन में कहते हैं एडवाइस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू द फ्यूचर गवर्नमेंट, है ना? नॉट जस्टिसेबल, राइट? हाँ, गुड, वेरी वीर शर्मा, वेरी गुड. हाँ, तो अब इसमें क्या चीज है? एक एडवाइस है और उसमें से बहुत सारी एडवाइस इंप्लीमेंट भी किया गया है डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा. जैसे फॉर एग्जांपल, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. क्या मतलब बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है कि आप एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाइए और एनिमल हस्बेंड्री को भी मॉडर्न बनाइए. तो क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? पहले ये दोनों बताओ, फिर मैं सेकंड आंसर बताऊंगा. Yes, not binding on the government, official to consider. Yes, option to consider. Yes, Pradipta, you are also right. So, can you please give me one example where the government of India or any state government has made agriculture modern? कोई example या उसको modernize करने का? Yes, Akshit, very good. What I was expecting from someone, yes, I have got it. Akshit is right. Green Revolution, 1960s. क्या था ये? HYV seal, high yield variety seeds. Yes, गोकुल मिशन 2014. Yes, वीर शर्मा, वेरी गुड. एनिमल हस्बेंड्री में आप गोकुल मिशन लिख सकते हो. इंप्रूविंग ब्रीड्स ऑफ कैटल, आप अगर आप बजट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड अदर मिशंस आर देयर. इंप्रूविंग ब्रीड्स ऑफ कैटल, उससे क्या होगा? जब कैटल की ब्रीड्स इंप्रूव होगी तो एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव होगा. यस, वेरी गुड. रायतू बंधु भी कह सकते हो, यू कैन से, बट द बेस्ट एग्जांपल वुड बी ग्रीन रेवोल्यूशन. यस, सैफी नोमानी, यू आर आल्सो राइट. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है, तो यही एक डीपीएसपी है. नीचे क्या बोला जा रहा है? प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ कॉज एंड काव्स. ठीक है, कि गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि ब्रीड्स को बचा के रखे, कॉज एंड काव्स को, एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल. मिल्च कैटल मतलब जो मिल्क देती हो ना, मतलब जो व्हिच एक्चुअली गिव्स यू मिल्क एंड ऑल, एंड ड्रॉट कैटल मतलब जो मिल्क नहीं देती हो बट इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एंड ऑल. ठीक है, तो इसको भी तो और ये आपको शायद पता होगा, आई होप यू आर अवेयर, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैज एक्चुअली इन्फोर्स्ड द कॉ स्लॉटर बैन. There might be some exceptions, one or two, maybe I think in northeastern states or somewhere, but by and large, I think 80% of the states have enforced this. ठीक है, so just have an idea. This is article 48B is the right answer. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. Let's talk about another one question, that is, who is the Attorney General of India? This is an easy question, and please tell me the article which talks about him, Attorney General of India. Yes, Safi, Nomani, Tanvi, Gauravi, Dharini, Veer, Pradipta, Safi, Aman, Veer Sharma, you're right. Huh? The right answer is Mr. R. Venkat Ramani is the right answer. I was asking article. So, Veer Sharma बहुत close हो, but you're not 100% right. Safi Nomani 176 बता दी, आप भी बहुत close हो, but you missed it. Yes, Akshit has answered it correctly. It is actually article 76. हाँ, yes, Namo Safi, not 176, it is 76. ठीक है, तो आर्टिकल 76 क्लियरली टॉक्स अबाउट इट ना. हम आपको बताते हैं क्यों मैं पूछ रहा हूं. जैसे एक बार एलेट में सिर्फ क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैच्यूटरी बॉडी. उन्होंने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉ कमीशन, फिर एक और किसी का चेयरमैन बताया था. ठीक है, कि ना ही वो लॉ पार्लियामेंट्री लॉ से बना है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ठीक है, तो उसमें से एक था लॉ कमीशन के चेयरमैन. सो लॉ कमीशन इज नाइदर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉर इट्स अ स्टैच्यूटरी बॉडी. ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, यानी पार्लियामेंट्री लॉ से बना है, कौन कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ठीक है,
Solicitor General is not mentioned in Constitution. No, not in 143. No, it's not mentioned in Constitution. So Attorney General is mentioned in 76. R. Venkatramani is the Attorney General of India. So D is the right answer. And yes, you must be aware of him. Article 76 talks. ठीक है, तो इनका ये सब ड्यूटी होता है. हाँ. Now the next one is who is the Chief Justice of India. And actually ये तो actually बहुत आसान है, but I am asking this कि वो कितने नंबर के हैं. He is actually the X Chief Justice of India. तो वो X क्या है, यानी कितनेवें नंबर के, ये बताना है. अच्छा चलो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा और स्लाइटली ऊपर पूछता हूं. यस, कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीजीआई. सो एक्चुअली इज गोइंग टू रिटायर इन नवंबर. आई थिंक 13-14 नवंबर के आसपास ही विल रिटायर and will be having a next CGI from November this year to May next year. Who will be the next one? So Justice D.Y. Chandrachud is actually the 50th Chief Justice of India who will retire in November this year, and will be having a new one, Justice Sanjeev Khanna. Yes, Akshit, you are right. S.R. Khanna, I don't know the full name, but Sanjeev Khanna उनका नाम है. ठीक है. Yes, Veer Sharma, you are also right. The next Chief Justice of India will be Justice Sanjeev Khanna. ठीक है. और why he is famous? Actually, his uncle was very famous. There's a very famous judge, Justice H.R. Khanna. आपने नाम सुना है? Because he passed an order during Indira Gandhi time. Actually हुआ ये था कि I'm not going in that detail because it will become very long, but just remember Justice Sanjeev Khanna's uncle or what we call it in Hindi as chacha, means his father's brother, if I'm not wrong, was the Supreme Court judge. He passed an order, what we call it as ADM Jabalpur case, very famous ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla case. And he was supposed to be the next CJI because he was the senior most, but the Indira Gandhi government changed and he lost his chance to become the CJI. तो इनका नाम बहुत फेमस है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, जस्टिस एचआर खन्ना. एडीएम जबलपुर केस है बहुत फेमस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, या जिसको हम लोग हैबेस कॉर्पस केस नाम से जानते हैं. बट आई थिंक वो आप शायद फ्यूचर में आगे पढ़ोगे, सो आई एम नॉट राइटिंग इट हियर. यस, डिटेंशन विद ट्रायल. यस, वीर शर्मा, यू आर वेरी राइट. जो वो केस है उसका नाम, उसको कहते हैं हैबेस कॉर्पस केस. ठीक है, ये फेमस नाम है, बट ओरिजिनल नेम इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस. एन सीजीआई बन गए थे. ये साक्षित, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड. तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे दिया कि नेक्स्ट सीजीआई कौन बनने वाले हैं. 50 तो 51st बनेंगे उस लॉजिक से, है ना सीजीआई लाइन. खैर, तो 2 बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है. इट हैज हैपेंड ट्वाइस वेयर द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज वाज नॉट मेड द सीजीआई, was not made the CJI, but generally वो इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था. but otherwise generally the rule is whosoever is the senior most from seniority principle. senior most age wise नहीं कह रहा हूं, उम्र के हिसाब से नहीं होता है, seniority principle यानी किसने सबसे ज्यादा सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, so from that logic they calculate. खैर, so that is what you should be knowing. He is the current CJI, 50th CJI. और अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं. Can you please tell me who was the longest serving CJI in India? कोई बता सकता है? Anyone? His dad. Very good, Dharini. Very good. Fantastic. Yes. Actually, that is why I was asking. उनका नाम था Justice Y.V. Chandrachud, and he was actually the longest serving Chief Justice of India from 78 to 85. ठीक है. Yes, very good, Preeti, Veer Sharma, Pradipta. So तो ये सब काफी फेमस थिंग है ना. ठीक है, so yes, यहाँ लिखा हुआ भी हो, nice. So okay, खैर, so let's move on to the next one. Who is the National Security Advisor of India and why he is in news? Yes, Mr. Ajit Doval, and he's a National Security Advisor of India. Recently, it was actually he was in the news because किसी ने B option कर दिया.
ये शिवशंकर मेनन तो जब मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर तब शिवशंकर मेनन एनएसए हुआ करते थे, ठीक है. He visited Russia recently. हाँ, कह सकते हो वो भी. Yes, there are many reasons he is in the news, but one reason was actually because of this, that US court had summoned him. तो यूएस कोर्ट ने उनको सम्मान किया. उसके बाद आई थिंक एन पीएम मोदी वेंट. जनरली मोदी जी जब जाते हैं ना तो एनएसए के साथ जाते हैं, बट दिस टाइम वी हैव नॉट सीन हिम गोइंग अलोंग विद हिम इन यूएसए. तो इसलिए भी न्यूज में था. खैर बहुत सारे रीजन से इज इन द न्यूज. So India rejects summon issued by US court for NSA Ajit Doval raw ex-chief in Panno case. Okay. So D is the right answer. Now the next one is, who is the current CBI director? Can anyone tell me? Okay. And there is a request, guys. Everyone, please press the like button and subscribe to our channel. हम लोग नेक्स्ट वीक और ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने वाले. नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट weeks और भी बहुत सारे ले आए हैं, and we'll be having more important contents for the upcoming exam. हाँ, Mr. Praveen Sood, D is the right answer. Yes, Akshit, Nisha, Kanishk, Safi, Aman, Pradipta, you are right. D is the right answer to this question. First CBI head was Mr. Kohli. Yes, you are right. PB Kohli, right. Yes, okay, so D is the right answer to this question. Okay, now the next is, who is the CAG of India? Comptroller and Auditor General of India. S. Jaishankar, Shiv Shankar Menon, Rajiv Maharishi, GC Murmu. US election का कल होगी क्लास अक्षित. Most likely 99%. Tomorrow at 6 p.m. we'll be having a session on US presidential election, because that's very important, and I thought कि उस पर एक पूरा वीडियो तो होना चाहिए. So the right answer actually is GC Murmu. Girish Chandra Murmu is the right answer. Yes, Dharini, Manaswini, Tanishka, Aman, Safi, Gorvi, Nivi, Safi. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. D. Very good. हाँ. CAG article 148. Very good. Kolapalli, you're right. है ना. The next one is, who is the Chief Election Commissioner of India? ये तो बहुत आसान है. ये सब तो पता होना चाहिए. टिप्स पर होना चाहिए ना. फिंगर टिप्स. Yes, the right answer is Mr. Rajiv Kumar. So C is the right answer. अच्छा, Chief Election Commission of India 3-member body है, इतना तो पता होगा. So there's a Chief Election Commissioners and 2 election commissioners, है ना. Gyanesh Kumar and Mr. Gyanesh Kumar and Mr. Sukhbir Singh Sandhu, and Rajiv Kumar is Chief Election Commissioner. So the right answer is C. Yes. Yes, Kolapalli, Dhriti, Rakshit. First was Sukumar Sen, right? हाँ. ठीक है. And which article talks about this? 148, 324, 191, 3. कौन से आर्टिकल बात करते हैं? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर भी दिया. यस, कोलापल्ली, यू आर राइट. एक्चुअली 324 टॉक्स अबाउट इट, है ना. यस, श्रेया अग्रवाल, वीर शर्मा, नीवी, कोलापल्ली, मनस्वी, धरिणी, श्रेया, तनिष्क, नमो, प्रदीप्ता, अक्षित, निशा, कनिष्क, यू आर राइट. हाँ, 324 टॉक्स अबाउट द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन. ठीक है. So this you should be knowing it. Okay, so let's move on. Which article of the Indian Constitution? This is very, very important, I would say. Star market talks about the constitutional amendment, the power to amend the constitution. नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का. यस, कोलापल्ली, वीर, प्रदीप्ता, श्रेया, मनस्विनी, कनिष्क, तनिष्क, Akshit, Dharini, Ridhima, you are right. 368 is the right answer to this question. So C is the right answer. Let's move on to the next one. अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, because I want to know. Now you all are. क्या ये अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, की कुछ लिमिटेड पावर होता है? मतलब क्या पार्लियामेंट जो भी चीज चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी से चेंज कर सकती है? यस और नो? यस अक्षित, लिमिटेड है. क्यों लिमिटेड है? केशव नंदा भारती केस की वजह से. हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर. वेरी गुड नामो. हाँ, वीर शर्मा, यू आर आल्सो राइट. हाँ, लिमिटेड है. गुड 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 गुड, वेरी गुड. हाँ. Which of the following schedules talks about the 3 list? Union list, state list, concurrent list. 5th, 8th, 4th, 7th. कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था. वेरी गुड. ऐसे 7 शेड्यूल. यस, वीर शर्मा, कोल्लापल्ली, देन धरिणी, रिधिमा, यू आर राइट. हाँ, कौन सा लिस्ट जो है वो कौन सा शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट. सो डी इज द राइट आंसर. यस,
बहुत से लोगों ने आंसर किया कनिष्क, अक्षित, प्रदीप्ता, नमो, गौरवी, तनिष्क, ऑल राइट है ना, एक ये आप पढ़ सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टॉक्स अबाउट मेंशंस 22 लैंग्वेजेस. एंड ओरिजिनली कितने लैंग्वेजेस थे? ओरिजिनली व्हेन 26 जनवरी 1950 को कितने लैंग्वेजेस थे? Yes, 8th schedule. Very good. Veer Sharma, Nevi, Kolapalli, Akshit, Dharini. You all were right. Originally 14th. Yes, Namo. You are right. Safi, Nomani, Kolapalli. You all were right. Manaswini. Originally 14 थे और जोड़ते 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 22 हो गया अब. ठीक है, ठीक है. 8th शेड्यूल. कभी कभी मैंने देखा है किसी किसी एग्जाम में वो अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तकलीफ दे, बट यू शुड रिमेंबर इट. मैं आपको देखो कुछ चीजें बता देता हूँ. It's not possible to remember all the 22 languages, but कुछ ऐसे चीज जैसे पूछेंगे which of the following language is not mentioned in the 8th schedule, तो कुछ सबसे पहले आपको ये लॉजिक लगाना कि इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज है. ठीक है, तो जैसे अगर मान लो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, उसमें एक इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप उसको आराम से काट देना. पूछेंगे which of the following is not लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल. सो सबसे पहले चीज आपको लॉजिक लगाना, बिकॉज आप रट नहीं सकते हो सारा, इट्स डिफिकल्ट. इफ यू सी कि कोई ऐसे तो नहीं कि फॉरेन ओरिजिन की भाषा है ना. अब मान लीजिए कोई 4 ऑप्शन दिया है, एक में उर्दू लिखा है और एक में अरबिक लिखा है. ठीक है, बाकी दो. अब कुछ लोगों ने सर नेपाली, बट यस नेपाली में बहुत सारी जगह इंडिया में बोली जाती है ओरिजिनली भी. तो आपको ये देखना उर्दू जो है ना इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अरबिक, हिंदी एंड अदर. तो इसीलिए उर्दू इज अ पार्ट ऑफ इट, बट अरबिक अरब से आया, सऊदी अरब से. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि हाउ टू लाइक थिंक इन द एग्जाम टू हैव अ कॉमन सेंस. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंग्लिश इसमें नहीं होगा बिकॉज इंग्लिश इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज नहीं है, अरबिक भी नहीं होगा ना. सो दीज आर द थिंग्स. उर्दू लेकिन यस, हाँ, इट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड इन इंडिया ओनली, है ना, दैट इज व्हाई इट्स प्रेजेंट. देन जैसे सिंधी है, तो बोले सर सिंध इज अ स्टेट इन पाकिस्तान, लेकिन हाँ, लेकिन गुजरात वगैरह रीजन में उसका इन्फ्लुएंस है, सो यू विल फाइंड इट इवन सिंधी लैंग्वेज. ठीक है, सर कौन कनी है गोवा वगैरह रीजन में, कश्मीरी तो है ही. ठीक है, नेपाली जो है बिहार यूपी के हिस्से में भी बोला जाता है. ठीक है, देन वी हैव असमीज, असम में, बंगाली, बोडो. बोडो भी जो है वो यू विल फाइंड इट इन लाइक असम रीजन एंड ऑल. ठीक है, तो ये सब इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज है, तो ये सब पता होना चाहिए. एंड तो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स याद रख लेना. 71st अमेंडमेंट से 3 लैंग्वेज ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली. 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ऐड किया गया. ठीक है, फिर 2011, ठीक है, ऐसे फिर 2011 में ओडिया का नाम चेंज करके ओडिया ऐसे किया गया स्पेलिंग. ठीक है, so this thing you should be doing it. Now the next is which of the following schedules of the Indian Constitution discusses anti-defection law? 5th schedule, 10th schedule, 4th schedule, 9th schedule. Please do a session on Israel war. अच्छा, मैं देखता हूँ इस वीक का तो सारा क्लास शेड्यूल हो गया है, मतलब प्लान हो गया. अच्छा, मैं देखता हूँ अवेल शेड्यूल. We have a lot of things to do, Celia. I'll try to find out. Okay, the time. The right answer is B, 10th schedule. Yes, Veer Sharma, Shreya, Dharini, Pradeepta, Aman, Manasvi, Kolapalli, Veer, Kanishk. हाँ, 52nd amendment. Very good, Namu. हाँ, 52nd amendment actually at the 1985 when Rajiv Gandhi was the prime minister. So B is the right answer. ठीक है. So 10th schedule anti-defection law से related है. The next is which of the following article says India, that is Bharat, shall be the union of states. ये लास्ट ईयर काफी न्यूज में था, खास के अक्टूबर नवंबर में, जब वो इंडिया और भारत के बाद आने लगा था कंट्रोवर्सी टाइप की. इंडिया का नाम भारत है, भारत का नाम इंडिया है. सो दीस डिबेट्स वेर हैपनिंग. सर प्लीज डू सेक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट पोजीशन. ओके धरणी, मैंने नोट्स में अपने लिख रखा है. ठीक है, बट अगर मौका मिलेगा सो आई विल ट्राई. स्लोली आई विल कम. हाँ, सो बेसिकली इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 में मेंशन ही काफी उस टाइम पर जिक्र हुआ था. यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. वीर शर्मा, श्रेया, प्रदीप्ता, गौरवी, मनस्विनी, है ना, तनिष्क. तो उस टाइम पे डिबेट हो रहा था, तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. अब हो सकता है मे भी ना पूछा जाए, बट लेकिन तो भी पता होना चाहिए, है ना. और 1-2 होमवर्क ये है, आप फाइंड आउट कीजिएगा. इंडिया टर्म ओरिजिनली किसने दिया था, ये कहां से आया. अब भारत, ये भारत टर्म जो है वो कहां से लिया गया ओरिजिनली. ठीक है, सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर. अब हो सकता है उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट हो, बट उस टाइम पर काफी न्यूज में था.
यस, वेरी गुड अक्षित, फैंटास्टिक. तो इंडिया टर्म जो है ब्रिटिशर्स लोग लिख रहे हैं. ग्रीक इज राइट. यस धारिणी यू आर राइट. अक्षित यू आर राइट. भारत तो ट्राइब है. यस मानसविनी यू आर राइट. भारत द ग्रीक. यस हाँ. पैक्स इंडिका. यस ग्रीक. देखो एक्चुअली क्या है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट हिस्ट्री, बट मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर sent by Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya. He wrote a book called as Indica. वहां से वर्ड इंडिया आया है. तो ओरिजिनली इट वाज गिवन बाय ग्रीक, नॉट ब्रिटिश. ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कई बार जब उस टाइम में डिस्कशन होता, पीपल वे सेइंग कि ये तो कॉलोनियल है, मतलब ब्रिटिश इंपैक्ट है, बट नो, इट्स एक्चुअली ग्रीक. और द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज भारत. तो महाभारत वगैरह में मेंशन है ना, सो लाइक इट्स फ्रॉम भारत ट्राइब इज आल्सो देयर एंड ऑल. ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल इंडियन आप कह सकते हो कि इंडियन वर्ड है. ओरिजिनल मतलब इंडियन भी नहीं कहना चाहिए, नहीं, दिस इज ओरिजिनली फ्रॉम आवर लैंड, बट द वर्ड इंडिया हैज बीन एक्चुअली गिवन बाय द ग्रीक्स. हाँ, वो इंडस रिवर वगैरह सब वहीं से, सिंधु रिवर. यस मानसविनी यू आर राइट. द टर्म इंडिया, इंडस, ऑल वेर एक्चुअली गिवन बाय ग्रीक्स. ठीक है, एंड ओरिजिनली इन इंडिया इट वाज कॉल्ड एज सिंधु, है ना. तो वो लोग इंडस इस तरह का वर्ड यूज करते थे, IND से यूज करते थे, उसी से इंडिया बना है. सो हाँ, यस. So the native term is actually Bharat, but this is a term which we have origin from Greek origin कह सकते हो. ठीक है, हाँ. So let's move on. Which of the following article talks about abolition of title? 17, 18, 21, 20. हाँ, हिंदुस्तान सब वर्ड वहीं से आया. देखो एक्चुअली क्या है, सिंध वर्ड है ना, सिंध, हिंदुस्तान, इंडस, ऑल आर एक्चुअली फ्रॉम द सेम टर्म. हाँ, abolition of titles कहाँ मेंशन है, ये लोग बता रहे. this is abolition of untouchability. the right answer is B. yes, Manaswini, Aman, Kolapalli, Ridhima, Tanishq, Gauravi, you are right. हाँ, B is the right answer. yes, Akshit. हाँ, so abolition of titles जो है article 18 ने mention है. article 17 talks about abolition of untouchability. which of the following article prohibits human trafficking? हाँ, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं 23 और 24 में. सो द राइट आंसर एक्चुअली इज बी, 23. यस, एंड कोलापल्ली, वीर शर्मा, नामो प्रदीप्ता, यू आर राइट. ठीक, गौरवी, तनिष्क, सैफी. हाँ, द राइट आंसर इज आर्टिकल 23. तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार एंड अदर सिविल फॉर्म्स आर एक्चुअली प्रोहिबिटेड एंड ऑल. तो ये साफ यहाँ मेंशन है. उसके लिए सेपरेट लॉ भी है. इनफैक्ट टू इन्फोर्स इट, द पनिशमेंट, फॉर पनिशमेंट देयर इज अ सेपरेट law has also been made. 24 is actually about child labor. Yes, Pradipta, very good. Yes, V Sharma, you're also right. Now the next one is the Bihar government has banned liquor, मतलब liquor drinking purpose के लिए, not for medicine purpose, है ना. Which of the following DPSP the Bihar government has implemented? ये तो I think 2015 वगैरह में हुआ था, if I'm not wrong. अप्रैल 2015. 47, 48, 49, 51. So this actually is a banning of liquor फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी इससे क्या नुकसानदेह होता है. डीपीएसपी ने में ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली हार्मफुल, बट इट इज नॉट फॉर मेडिसिनल पर्पस, मतलब दवा के लिए यूज किया सकता है. बिकॉज इफ यू नो a lot of medicines do contain some small amount of alcohol. ठीक है, तो वो ठीक है. हाँ, even in Gujarat also. yes, Namo, you're right. And I think a few more states. So the right answer here is 47. Health related. Yes, V Sharma, you are right. Akshit, Tanishq, Ridhima, Shreya Agarwal, you are right. A is the right answer to this question. देखो 47 ने बहुत लंबा चौड़ा है, बस सिर्फ लिकर बैन की नहीं बात कर रहा है, बट ऑल भी चीज की. ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये सब चीजें नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्यूचर में कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंप्रूव करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसका कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो कोई भी, कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेप पब्लिक हेल्थ यानी हेल्थ इंप्रूव करे, कोई एनी एग्जांपल? क्लैट पर्सपेक्टिव. यस धारिणी, देखो क्लैट में आर्टिकल्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं. ठीक है, बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, बिकॉज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. प्लस वन मोर थिंग यू शुड नो, क्लैट जो है ना वो अभी एक्सपेरिमेंट करें 2020 के बाद से, नया. हो सकता है एक नया एक्सपेरिमेंट करके आर्टिकल भी दे दें. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग.
खैर, यस, वेरी गुड, आयुष्मान भारत मिड डे मील, वेरी गुड, फैंटास्टिक। जैसे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम है, वेरी गुड। पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आयुष्मान भारत इज देयर, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना है ना, जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये है, तो ये सब प्राइमरी ड्यूटीज है। उसके बाद ये कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक यानी जिससे भी नशा हो, जैसे लिकर एंड ऑल, ड्रग्स विच आर इंजोरियस टू हेल्थ, या ऐसी नशावर ड्रग्स जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सके। सो इसको जो है ना कुछ स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया है, जैसे आई हैव डिस्कस्ड बिहार, द स्टेट ऑफ बिहार, द स्टेट ऑफ गुजरात एंड ऑल। इसको तो बहुत जगह ऑल इंडिया लेवल पर भी इंप्लीमेंट किया गया ऊपर वाली को, है ना। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ऐसे लिखते हैं ना। देखो आर्टिकल्स की जो बात है, जो कि आप लोग पूछते हो, तो हम मैंने जनरली जो होता है ना, जो लेस इंपॉर्टेंट होता है मैं स्किप कर देता हूँ, जो फेमस वंस होता है उसी को मैं फोकस कराता हूँ, ताकि आपको बार बार अगर दिमाग में चला जाएगा तो एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सम पीपल आर सेइंग डी। इलेक्टोर्स और नॉट सेलेक्ट, अच्छा आप इसलिए बोल रहे हो डी, अच्छा ओके। देखो ठीक है, ठीक है, actually electeds are not selected। अच्छा अगर आप की if you are picking my grammar then you are right, then from that logic D would be the right answer, but otherwise B is the right answer, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, सेलेक्टेड नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज वोट, ठीक है। ऐसे आई वाज थिंकिंग बी, बट ठीक है, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति दी है ना। ठीक है, इलेक्टेड नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है कि वो और जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं या इलेक्टेड एमएलएज, दे ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए बता रहा हूं, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलग होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एमएलएज डू नॉट चूज, ठीक है। जैसे आपने देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स, ऑल एमपीज डू वोट, चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, ऑल एमपीज मींस बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज, तो जो स्टेट लेवल के एमएलएज होते हैं वो भी वोट करते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और एमपीज जो नॉमिनेटेड एमपीज नहीं वोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्लाइट डिफरेंस, खैर हाँ। सो दिस यू शुड बी नोइंग, सो यस। द नेक्स्ट इज हु गिव्स असेंट टू द बिल, ये तो बताओगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। एसेंट टू द बिल मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाए, कौन साइन करेंगे, तो सिंपल है, इज द राइट आंसर, है ना। यस, कोलापल्ली, अक्षित, प्रादीता, धारिणी, तनिष्का, कनिष्की, ऑल करेक्ट। द नेक्स्ट इज, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, लोकसभा ओनली, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रेजेंट, नॉन ऑफ द अबव। मैंने आपको इतना भी हिंट दे दिया, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 79। हाँ, यस द राइट आंसर इज सी, नॉट बी, ठीक है। चूंकि बचपन से ये समझते थे कि दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, बट यस लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब बोलिए सारी लॉजिक से समझाओ, सो इट इज डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए अब आप उसमें लॉजिक नहीं लगाना है। प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस कंप्राइजिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको राज्यसभा कहते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, ठीक है। So when it is directly mentioned in the constitution, then you are not supposed to apply the logic कि सर प्रेसिडेंट कैसे हो गया part of parliament and all. We are not going in that detail, but yes, you have to remember C is the right answer. ठीक है। इनमें से लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा नॉन ऑफ द अबव, ये तो बहुत ही आसान है। हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, पॉपुलर हाउस। राइट आंसर इज यस, A is the right answer. Yes, Veer Sharma, Manaswini, Dharini, Safiri, Dimag, Shiti, all right. Tanishka is the right answer. Yes, Pradeepta, you're right. The next is, which of the following is the first woman judge of Supreme? ये तो बहुत ही important है और बहुत आसान भी है, hopefully. First woman judge of Supreme Court. Actually, she died last year in November. तो उस टाइम पर, and she has been ex-governor of which state? मतलब रिटायरमेंट के बाद she became the governor also.
जस्टिस फातिमा बीवी, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फिर रिटायरमेंट के बाद शी बिकेम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज वेल. व्हाट इज दैट स्टेट? बताइए. यस धारिणी, यू आर राइट. शी बिकेम द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. यस. Justice Fatma Bibi, who broke down barriers to become first woman judge in Supreme Court, is no more. The way November का last year की news है, and she was the governor of Tamil Nadu as well. Yes, ठीक याद रखिएगा. I think if I'm not wrong, she was born in Kerala, the state of Kerala. ठीक है, she is the right answer. हाँ, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, is going to be the first woman CGI if seniority rule is followed for I think बहुत कम दिन के लिए, I think 26-27 days के लिए बनेंगे, ज्यादा दिन के लिए नहीं, hardly for 1 month से भी कम है, 27 या 28 days के लिए. she will be the first woman CGI. yes, Dharini, Veer Sharma, Safina, Tanish, Tanvi, Pradipta. Justice BB Nagaratna, and she is currently the judge of Supreme Court, and according to the seniority rule she will be the CGI for 27-28 days के लिए. ठीक है ना. The next, I think her father was also the CGI as far as I remember. नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. She has become Supreme Court judge. The next is present rule is imposed in state under which of the following article of the Constitution? ये तो बताओगा. State emergency, president rule, and you must have heard it. ये सब. हाँ जी, राइट आंसर इज 356. यस, वी शर्मा, प्रदीप्ता, सैफी, निशा, तनिष्क. हाँ, 352 इज नेशनल इमरजेंसी. राइट नमो. हाँ है ना. प्रेसिडेंट रूल 356, ये तो पता होगा होपफुली. द नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल्स यू विल फाइंड द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. हाँ, तो ये भी बताए थे. 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी है, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी लगा नहीं. We have not seen financial emergency yet. First use in Kerala during CPI comment. Yes, Pradipta, very good. It is mentioned in the civics book, 11th या 12th में है ना. Good, very good. But please tell me how many states are there and how many union territories are there in India. एकदम perfectly बताना है. मतलब दोनों एक लाइन में आंसर करना है कि X स्टेट है सर और Y यूनियन. जैसे स्टेट X है इंडिया में और यूनियन टेरिटरी Y है, कितना है एग्जैक्ट बताइए. फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में कितने और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी. आज के दिन परफेक्ट आंसर बताना है. ओह यस, वेरी गुड, ग्रेट. मैंने बताया था क्या पहले? बिकॉज आई वाज सरप्राइज कि सब लोग सही आंसर दे रहे हैं. यस, धारिणी, नमो, अक्षित, इनफर्नस, प्रीति, तनिष्क, सैफी, नमो, श्रेया, वीर शर्मा, रिद्धिमा, निशा, सैफी. यस, द राइट आंसर इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. ये है करेक्ट सिनेरियो, नॉट 9. ठीक है, कुछ लोगों ने 9 बता दिया, बट दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया था दिसंबर 2021 में. सो वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. प्लीज डू रिमेंबर इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मैंने बताया था ना. हाँ, तो द रीजन इट्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ कोर्स इससे आसान और क्या है कि जो पूछा जाए, तो यू शुड नो इट, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में 4-5 साल में काफी चेंजेस वगैरह हुए थे ना, तो इसीलिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आप देख लेना फर्स्ट शेड. अगर ऐसे इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव एन आइडिया. I think that's more than enough. So please subscribe to our channel, press the like button, guys. And कल मुलाकात होगी tomorrow at 6 PM with actually we'll be having a video on US presidential election, जो कि अभी होने जा रहा है और ये सब काफी न्यूज में. So I'll be discussing in detail about it, है ना. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.